ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਵਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੂਪ ਤੋਂ। ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੌਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਮੰਡ ਸਿੰਬਲ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਪ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੇ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਆਫ ਲੂਪ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ 4 ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ, ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ your name 5 times। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, void main ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ। void main int I clear screen while I is less than or equal to 5 printf अपना नाम प्रिंट करवाओ, लाइक नेहा, एंड आई इज इक्वल आई प्लस प्लस। देखो कितनी स्टेटमेंट्स हुई, सॉरी इनिशियलाइजेशन वैल्यू रहेगी आई इज इक्वल टू 1। आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन होगी। कंडीशन आई इज लेस दैन इक्वल टू 5। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की आया नेहा, इनक्रीज होगी वैल्यू। तो 4 लाइन्स के साडा वाइल लूप चलेगा। सब तो पहला इनिशियल वैल्यू मिली आई इज इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस दैन 5, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन इज़ ट्रू। दैन की प्रिंट हो गया? नेहा। फर्स्ट टाइम साडे कोल नेहा प्रिंट हो गया। उस तो बाद वैल्यू इनक्रीज हुई, कितनी होगी? 2। आई इज़ प्लस प्लस लिखा है, वैल्यू कितनी होगी? 2। कंडीशन अगेन चेक हुई, 2 इज़ लेस दैन 5, कंडीशन इज़ अगेन ट्रू। दैन ब्लॉक च गए, की प्रिंट हो गया? नेहा। फिर कंडीशन इनक्रीज, वैल्यू इनक्रीज होगी, कितनी होगी? 3। 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन 3 इज़ लेस दैन 5, कंडीशन ट्रू। फिर असी ब्लॉक च गए, की प्रिंट होया? नेहा। फिर वैल्यू कितनी होगी? 4। फिर कंडीशन चेक हुई, 4 इज़ लेस दैन 5, कंडीशन इज़ अगेन ट्रू। फिर की प्रिंट हो गया? नेहा। फिर वैल्यू कितनी होगी? 5।
5 इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो फिर की प्रिंट हो गया नेहा। हुण वैल्यू कितनी होगी 6, 6 इज़ लैस दैन 5, नो 6 इज़ नॉट लैस दैन 5, 6 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 5, दोनों कंडीशनां गलत होंदियां ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੈਟ ਸੀ ਐਚ 'ਤੇ। ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ। Now our last topic, do while loop। Number 3 and last topic is do while loop। देखो बेटा, डू वाइल लूप है जो पोस्ट टेस्ट लूप है, इनू पोस्ट टेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जी कंडीशन है वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने तो बाद चैक होंगी है। ठीक है, हुण इस लूप की क्यों जरूरत पई है वो मैं तुहानूं दसूँगी जो आप इहदा प्रोग्राम कर लिया। देखो, सब तो पहला इहदा सिंटैक्स इज इनिशियलाइजेशन तो बाद सैमीकोलन, फिर डू कीवर्ड लगता है, डू कीवर्ड, फिर उस तो बाद जो है बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स चलनगियां। बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स तो बाद वैल्यू नू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। फिर उस तो बाद वाइल दे विच जो है कंडीशन लगेगी, वाइल दे विच कंडीशन, फिर सैमीकोलन लगना है। क्लीयर बेटा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डू वाइल लूप यूज़ करना है, वाइल दे विच कंडीशन तो बाद तुसी सैमीकोलन यूज़ करना है। फोर लूप च भी नहीं करना, वाइल लूप च भी नहीं करना, डू वाइल लूप दे विच वाइल दे विच कंडीशन लिखने तो बाद सैमीकोलन जरूर यूज़ करना है। इहदा सिंटैक्स है, फॉर्मूला है, तुसी इहनूं फॉलो करना है। ठीक है, हुण इहदा आपां जे फ्लो चार्ट देखिए, पहला समझो सिंटैक्स किवें चलेगा। वैल्यू नूं इनिशियलाइज़ करता, स्टार्टिंग वैल्यू देती, फिर वो वैल्यू चैक नहीं होएगी, सीधा जो साडी स्टेटमेंट प्रिंट होने वाली है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर वैल्यू इनक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, जिहड़ी नवीं वैल्यू बनेगी वो चैक होगी। फर्स्ट टाइम वैल्यू नहीं चैक होएगी, नैक्सट टाइम चैक होगी। तो वो कंडीशन जे सही हो जाती है, फिर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर वैल्यू इनक्रीज़ डिक्रीज़, फिर कंडीशन, फिर ये प्रोसैस चली जाना है। जो कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाना है। ठीक है, हुण इहदा फ्लो चार्ट देखो, डायग्रामैटिकली रिप्रजेंटेशन थ्रू आपां इहनूं डिस्क्राइब करते हैं। सब तो पहला एंट्री तो बाद असी कित्थे जा रहे हैं, इनिशियलाइजेशन तो बाद असी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्केयर बॉक्स दे विच बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स लिखण तो बाद असी वैल्यू नूं या तो इनक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं। इनक्रीज़ डिक्रीज़ करन तो बाद असी कंडीशन चैक करते हैं, तो साडे कोल डायमंड सिंबल इत्थे आएगा। ठीक है, फिर असी की हो जाने एग्जिट। देखो, जो साडी कंडीशन है जे ट्रू हो जाती है तो असी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स दोबारा चलांगे, तो कंडीशन ट्रू हुई, प्रोसैस दोबारा, लूपिंग दोबारा। पर जो कंडीशन फॉल्स हो गई तो असी बाहर आ जाते हैं एग्जिट करके। ठीक है, ये साडा पोस्ट टेस्ट लूप, डू वाइल लूप का सिंटैक्स है, फ्लो चार्ट है। हम लूप दे इस लूप के थ्रू आप अपना नाम प्रिंट कराइए। टू प्रिंट यूर नेम 5 टाइम्स यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, तो उसी तरह ही वॉइड मेन I इज इक्वल टू इंट I इज इक्वल टू 1, डू printf your name नेहा
ਦੈਨ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆਈ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੈਟ ਸੀ ਐਚ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਲੂਪ, ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਈ 1 ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇਹਾ। आई ਦੀ वैल्यू इंक्रीज़ हुई कितनी होगी 2, फिर सॉरी फिर इस कंडीशन ते आना है 2 इज़ लैस दैन और इक्वल टू 5 कंडीशन इज़ अगेन ट्रू। जो कंडीशन सही होगी फिर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट करना है नेहा, फिर प्रिंट हो गया। फिर 3 होगी वैल्यू, 3 इज़ लैस दैन 5 कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट होगी नेहा। फिर अपने को कितनी होगी वैल्यू 4, 4 इज़ लैस दैन 5 कंडीशन अगेन ट्रू, फिर प्रिंट होगी नेहा। जो अपने को 5 वैल्यू होगी आई दी तो 5 इज़ इक्वल टू 5 कंडीशन इज़ अगेन ट्रू, दैन ब्लॉक च जावांगे, फिर साढ़े को नेहा प्रिंट हो गया। हुण इत्थे वैल्यू कितनी होगी 6, 6 इज़ लैस दैन इक्वल टू 5, नो इत्थे कंडीशन साडी फॉल्स होंदी है कि 6 साडी ना तो वैल्यू 5 तो घट है तो ना ही 5 के बराबर है, तो असीं बाहर आ गए, साडे कोल जिहड़ी रिक्वायर्ड वैल्यू सी। देखो तीनों प्रोग्राम्स दे विच सानूं सेम आउटपुट चाहिए सी, तो आउटपुट नूं यूज़ करन दा तरीके जिहड़े साडे कोल बनाउण दे अलग अलग है, ठीक है। हुण इत्थे क्वेश्चन ये अराइज होंदा है कि सानूं डू वाइल लूप की जरूरत क्यों पई। डू वाइल लूप की देखो फोर लूप ते वाइल लूप दे विच कमी सी, की कमी सी कि मान लो उहदे विच कंडीशन सी साडी वो पहला चैक होंदी सी ते बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स बाद विच एग्जीक्यूट होंदी सी। पर जे साडी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही गलत हो जाए, ठीक है, जिवें आपां आई दी वैल्यू 1 दे के आई इज़ लैस दैन इक्वल टू 5 कीता सी, ते जे इत्थे आई दी वैल्यू स्टार्टिंग ते 6 होंदी या 7 होंदी, फिर की हुंदा, फिर साडी फर्स्ट टाइम ते कंडीशन फॉल्स हो जाती ते आउटपुट स्क्रीन साडी ब्लैंक रह जाती, कुछ भी प्रिंट होके नहीं आना सी, ठीक है। तो उहदियां जो ड्रॉबैक्स सीगियां कि जे फर्स्ट टाइम ही साडी कंडीशन गलत हो जाए तो उस ड्रॉबैक नूं किन्ने पूरा किया, डू वाइल लूप ने पूरा किया, क्योंकि इहदे विच असीं कंडीशन नूं थल्ले ले आए, ठीक है, कि जे साडी कंडीशन फर्स्ट टाइम भी गलत हो जाती है, सैकेंड टाइम सॉरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो चैक ही नहीं होंदी, तो साढ़े को जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो घट तो घट एक बार जरूर चलूगा। मान लो जे मैं इत्थे वैल्यू 6 दे देंदी, देखो प्रिंट एफ नेहा तो प्रिंट ही हो जाता, फिर आई दी वैल्यू 7 हो जाती, 7 वैल्यू चैक होंदी फॉल्स होंदी, बाहर आ जाते, तो कला एक बार नेहा तो जरूर प्रिंट होंदा, 4 बार ना होंदा, ठीक है। तो जिहड़ियां ड्रॉबैक्स सीगियां फोर ते वाइल लूप दियां उसनूं किन्ने दूर किया, डू वाइल लूप ने। डू वाइल लूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬॉडी ऑफ स्टेटमेंट घट तो घट एक बार जरूर चलता है, चाहे पहली बार कंडीशन सही होवे चाहे गलत होवे। जे कंडीशन पहली बार च भी गलत हो जाती है तो साडी आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक नहीं रहिंदी। तुहानूं ये क्वेश्चनस भी आंदा, तुहाडी एक्सरसाइज दे विच भी पिछे क्वेश्चन होएगा कि डू वाइल लूप की घट तो घट लागू करन दी गिनती कितनी होंदी है, आपां कहांगे 1, ठीक है। तो ये सी डू वाइल लूप की नीड कि इस लूप की पोस्ट टेस्ट लूप की सानूं जरूरत क्यों पई। तो बेटा ये तीनों लूप्स का जोड़ा है लैक्चर थोड़ा डिटेल दे विच मैं अज करवाया है, होप है कि थोड़ा बहुत अच्छा लग्या होगा तो ध्यान नाल थोड़ा समझ आ गया होना है। बहुत अच्छे तरीके नाल शायद कोशिश की है कि मैं थोड़ा क्लीयर कर पावां, पर तुसीं इसनूं 2-3-4 बार देखोगे इस लैक्चर में थोड़ा डिटेल दे विच समझ आ जाना है। तो नैक्सट जोड़े मैं लैक्चर्स थोड़े लिए लैके आ रही हाँ वो है इसकी बैक एक्सरसाइज तो इसके प्रोग्राम्स, वो आपां अगले दो टॉपिक्स है जोड़े अलग अलग पार्ट्स के डिस्कस करांगे। तो उदों तक तुसीं ये चैप्टर नूं डिटेल दे विच समझ लेना है ताकि तुहानूं वो जिहड़ियां चीज़ां सही ढंग नाल समझ आ जाण। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।